हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ विनय यादव, मैथमेटिक्स मेंटोर। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी टॉपिक से बेस थ्योरम। सो टू अंडरस्टैंड बेस थ्योरम वन मस्ट बी वेरी मच क्लियर विद द other topics such as multiplication theorem as well as total probability theorem. So we have planned our today's lecture to understand Bayes theorem. So we will be starting with, so let's see our today's goal. We will be starting with multiplication theorem because it is very much useful while understanding Bayes theorem, as well as we will see total probability theorem. After that we will move to towards our main topic, that is Bayes theorem. Post that we will see questions practice. We will see there are a number of questions based on total probability theorem as well as Bayes theorem. Also we will see the questions which has already been asked from JEE Mains as well as JEE Advanced previous years. So let's start with our basic topic, that is our first topic, and that is multiplication theorem. So multiplication theorem को समझने के लिए we will take the help of conditional probability. So let's start with multiplication theorem. Our first topic is multiplication theorem. So we already know from conditional probability that, so let's say we have two events A and event B. So if you need to find the probability of event A such that event B has already occurred, so we write it as probability of A intersection B, probability of A intersection B divided by probability of B. From conditional probability, it is already known to us. This is our equation number 1. Similarly, we can rewrite it as probability of B such that event A has already occurred is equals to probability of A intersection B divided by probability of A. So let's say this is equation number 2. So from equation 1 and equation 2, we can see there is one factor term, that is there is one common term, that is A intersection B. So we can rewrite it as probability of, so from equation 1 and equation 2, from equation 1 and equation 2, we can have probability of A intersection B is equals to, from equation 1 we can rewrite it as probability of B multiplied by probability of A such that B has already given. So probability of B into probability of A such that B has already been occurred. So from equation 1 we can rewrite probability of A intersection B equals to probability of B multiplied by probability of A such that B has already occurred. Similarly, from equation 2 we can rewrite probability of A intersection B as probability of A multiplied by probability of B such that A has already occurred. So this is probability of A intersection B. अब इसका मतलब क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कि अगर हमारे पास दो इवेंट हो, इवेंट ए और इवेंट बी, और हमें दोनों के एक साथ अकर होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे? किसी एक इवेंट को पहले हो जाने देंगे। लेट से अगर हम इवेंट बी को हो जाने देते हैं, तो लेट से हमारे पास इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी हमें मालूम चल गया। तो इवेंट बी के होने के बाद, सो दिस इज व्हाट वी रीड, हाउ वी कैन रीड दिस एज इवेंट बी के होने के बाद इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी। लेट मी रीराइट दिस, दिस इज रीड एज ए और बी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, करेक्ट। सो दिस इज अकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज रीड एज, दिस वी कैन रीड एज इवेंट बी के होने के बाद, बी के होने के बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी, ए के होने की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इवेंट ए के होने के बाद इवेंट बी के की प्रोबेबिलिटी। सो वी कैन रीराइट दिस एज ए के होने के बाद बी के होने की प्रोबेबिलिटी, So in common terms we can understand
कि ए और बी दोनों के होने की जो साथ में जो प्रोबेबिलिटी होगी, ए और बी के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू, पहले इवेंट ए हो जाने देते हैं, इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी, उसके बाद इवेंट ए के होने के बाद इवेंट बी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली या तो हम इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, अगर इवेंट बी हो चुका होगा हमारा तो इवेंट बी के होने के बाद इवेंट ए की क्या प्रोबेबिलिटी बचेगी, उस दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे सो एज टू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए एंड बी साइमल्टेनियसली। सो दिस इज आवर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट वेयर इन अगर हमें किसी भी ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे, पोस्ट दैट विल मल्टीप्लाई विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए इज ऑलरेडी अकर्ड, या फिर इवेंट बी के प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, उसके बाद इवेंट बी के होने के बाद ए की क्या प्रोबेबिलिटी बचेगी उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दिस इज आवर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो ये रिजल्ट हम याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सो अनदर टॉपिक इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। So let's understand one by one. So our next topic is total probability theorem. Total probability theorem. So total probability theorem समझने के लिए let's understand हमारे पास एक सैंपल स्पेस दिया हो, लेट्स से दिस इज आवर सैंपल स्पेस S। तो जो टोटल सैंपल स्पेस है इसको हम क्या बोल रहे हैं, S बोलते हैं, राइट। अब इसको हमने क्या किया, अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। लेट्स से हमने इसको पार्टीशन E1 में डिवाइड कर दिया, सिमिलरली E2 में डिवाइड कर दिया, सिमिलरली E3 में डिवाइड कर दिया, एंड सो ऑन, और लास्ट में हमने क्या किया, En में डिवाइड कर दिया। सो हमारे पास एक सैंपल स्पेस S था, किसी भी इवेंट का सैंपल स्पेस S है हमारे पास टोटल, हमने इसको n पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया सच दैट पार्टीशन 1 इज नेम्ड एज E1, E2, E3, लाइकवाइज लास्ट पार्टीशन इज नेम्ड एज En। अब हमारे पास कोई एक इवेंट E है, लेट्स से वी हैव इवेंट E, राइट। इवेंट E है हमारे पास जो कि कुछ इस तरीके से है। इवेंट E हमने, हमारा जो ये वाला पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म हमारा इवेंट E है, राइट। तो हमारे पास ये इवेंट E आ गया, हमारे पास सैंपल स्पेस कितना है, पूरा S है, जिसको हमने n पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, नेम्ड E1, E2, E3 अप टू En। हमारे पास इवेंट E है, नाउ वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। तो जो टोटल इवेंट प्रोबेबिलिटी होगा हमारे E का, दैट विल बी नोन एज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। सो आवर आस्क इज वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ये जो पूरा हमने ब्लू कलर से बनाया है, ये पूरा रीजन का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ E। The shaded region is known as probability of E. That is our ask from that we used to conclude from total probability theorem. अब हमारे पास जो इवेंट E1, E2, E3 है, इसके बारे में समझते हैं हम लोग, क्या है इसके बारे में, क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमारा जो हमने डिवाइड किया n पार्टीशंस में, तो इवेंट्स E1, E2 up to En are म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहला पॉइंट तो ये है इंपॉर्टेंट कि ऑल द इवेंट्स E1, E2, E3, En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। व्हेन वी आर सेइंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, व्हाट डज दिस मीन, कि दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, जब A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी हो जाती है, 5। दैट इज देयर इज नो सिंगल एलिमेंट इज कॉमन इन बिटवीन सेट A एंड सेट B। जब दो सेट के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, सो इन दैट केस वी यूज्ड टू कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फर्स्ट पॉइंट की, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इवेंट E1 और इवेंट E2 में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, एज वी ऑल कैन सी इन द फिगर। तो किसी भी पॉइंट में अगर हम लेट्स से इवेंट E1 और इवेंट En की बात करें, तो दोनों एक पार्टीशंस में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है। सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट कि ऑल द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेकेंड पॉइंट इज ऑल द इवेंट्स आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। नाउ व्हाट डज दिस मीन, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव? इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इवेंट E1, इवेंट E2 का सबका यूनियन लेंगे अप टू En, तो we will be getting a sample space S. So what does this mean? Event E1 union, event E2 union up to event En, that will be equals to sample space S. So our two conditions are कि mutually exclusive होना चाहिए सारे events जो हमने पार्टीशंस में डिवाइड किए, as well as they must be mutually exhaustive, and जितने भी इसके पार्टीशंस बनाए हमने, सारे पार्टीशंस जो हैं, let's say probability of EI must be greater than equals to 0, less than equals to 1.
इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। सो इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। ऑल द जितने भी पार्टीशंस हमने डिवाइड किए हैं, सारे इवेंट जो होंगे उसके कुछ ना कुछ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी आएगी, कभी भी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होगी किसी भी पार्टीशन का या फिर किसी भी इवेंट का। सो दिस आर द एजम्पशंस विच वी हैव टेकन। अब हम बात करेंगे कि हमें इवेंट E3 का टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम लोग। सो लेट्स अंडरस्टैंड। अगर हम इवेंट E की बात करेंगे तो हमारा कितना आएगा इवेंट E, तो वी कैन राइट, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रूफ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो अगर हमें इवेंट E लिखना हो तो वी कैन री राइट इट एज इवेंट E विथ इंटरसेक्शन ऑफ सैम्पल स्पेस S। तो अगर हम इवेंट E की बात करेंगे तो अगर हम सैम्पल स्पेस S के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें कंप्लीट E मिल जाएगा जो हमारा टोटल इवेंट E है। तो वी कैन राइट एज E इंटरसेक्शन S। लाइकवाइज हमने सैम्पल स्पेस S को क्या देखा है अभी, E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू EN, क्योंकि हमारे ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन अप टू यूनियन EN। तो हमने क्या देख लिया, E इंटरसेक्शन सैम्पल स्पेस S को हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज वी हैव डिवाइडेड सैम्पल स्पेस S इनटू n इवेंट्स, सॉरी n पार्टीशंस। सो दोस पार्टीशंस आर E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू EN। नाउ वी कैन सी द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, इवेंट E कैन बी रिटन एज इवेंट E डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इवेंट E इंटरसेक्शन E1, उसके बाद वापस हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा यूनियन, फिर से आएगा E इंटरसेक्शन E2 यूनियन E इंटरसेक्शन E3 यूनियन अप टू यूनियन, लास्ट में आ जाएगा हमारे पास E इंटरसेक्शन EN। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हमने लगा दिया, यहाँ से हमें इवेंट E की वैल्यू ये मिल गई, राइट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर हम देखें तो ये हमारा एक इवेंट A है और ये इसको लेट से इवेंट B मान लेते हैं, तो A यूनियन B है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास दिया हो A और B दो इवेंट एंड वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, तो वी नो कि ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, राइट। बट अगर A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0 हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाए, इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। Once this term is 0, we can write probability of A union B equals to probability of A plus probability of B. Likewise, we know कि हमारा जो भी events हैं E1, E2, E3 already they are mutually exclusive events. अगर ये mutually exclusive events हैं, इसका मतलब इनका intersection कितना आएगा, 0. It means कि अगर हम इसको एक event A माने और इसको event B माने, तो we can write as a sum of all the events, right? So यहाँ से हमारे पास हो जाएगा event E equals to, और we can use probability also. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम लिख पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C डॉट डॉट डॉट, राइट। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E3 प्लस डॉट डॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन EN। अगर हम डायग्राम से देखें तो E इंटरसेक्शन E1 मतलब हमारा E कितना, ये वाला टर्म है जो ब्लू कलर से है शेडेड रीजन, और E1 हमारा पहला पार्टीशन। तो पहले पार्टीशन से हमारा E कितना आ रहा है, दिस रीजन, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला रीजन हो जाएगा, पहला वाला रीजन। दिस इज नथिंग बट E इंटरसेक्शन E1। लाइकवाइज ये वाला पोर्शन हो जाएगा E इंटरसेक्शन E2। लाइकवाइज ऑल द टर्म्स वी हैव रिटन हियर। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ E, हमें सारे प्रोबेबिलिटी को इंडिविजुअली कैलकुलेट करके ऐड करना पड़ेगा, राइट। So let's see here. So we can rewrite it as probability of E is equals to, अब हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना होता है, किसी एक इवेंट को हो जाने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अगर हमारा E1 हो गया है तो E1 के होने के बाद A की होने की प्रोबेबिलिटी, तो हमारा E1 हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के होने के बाद, मतलब E1 के होने के बाद E के होने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E सच दैट E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। सिमिलरली यहाँ पर जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के होने के बाद E के होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया हमारे पास E इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E सच दैट E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, लाइकवाइज प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट में क्या लिख पाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इनटू EN के होने के बाद E के होने की प्रोबेबिलिटी।
This is our probability of E, that is probability of E1 multiplied by probability of E such that E1 has already occurred plus probability of E2 such that probability of E2 into probability of E such that E2 has already occurred. Likewise हमारा लास्ट टाइम कितना हो जाएगा, probability of En multiplied by probability of E such that En has already occurred. So this is our total probability. तो हमने क्या किया, पूरे इवेंट E जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगा हमने क्या किया, उसको मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करके हर पार्ट को ऐड करके प्रोबेबिलिटी का वी हैव सेड दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू इतनी हो जाएगी. सो लेट मी रीराइट दिस. तो एक बार अगर हम समझ लें वापस से टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है हमारे पास सैंपल स्पेस एस दिया हुआ था, आउट ऑफ विच वी हैव डिवाइडेड इनटू एन पार्ट्स एंड पार्टीशंस हमने बना दिए सच दैट, पार्टीशन किस तरह से बनाया, सच दैट कि ऑल द इवेंट्स E1 E2 En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमेशा 5 होगी. मतलब कि किसी भी दो पार्टीशंस के अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, अब इफ यू विल टेक द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू पार्टीशंस we will get null value as in common, so we will not get any single records in common while taking intersection, right? Second point is it should be mutually exhaustive. What does this mean? Ki while taking union of every partitions we must be getting the sample space S. And third is probability of every individual events, it should be lying between 0 and 1, right? So in this way we have calculated event E कितनी हो जाएगा हमारा, event E की वैल्यू हो जाएगा event E intersection sample space S. वहाँ से हमने देखा सैंपल स्पेस एस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं यूनियन के फॉर्म में, बिकॉज दीज आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स. वहाँ से हमने फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. फ्रॉम देयर वी हैव सीन कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 है, सो वी कैन यूज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो यहाँ पे हमने क्या किया, यूनियन को कन्वर्ट कर दिया एडिशन में. पोस्ट दैट वी हैव अप्लाइड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम विच वी हैव जस्ट स्टडीड. सो फ्रॉम हियर वी गॉट दिस रिजल्ट. सो दिस इज आवर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. सो लेट मी रीराइट दिस. So probability of E is equals to probability of E1 into probability of E such that E1 has already occurred plus probability of E2. अब अगर E2 हो गया है तो probability of E2 के होने के बाद E के होने की probability. Like this we can read this. Here we can write probability of En. अगर En हो चुका है तो probability of En के होने के बाद E के होने की probability. तो this is our total probability theorem. तो अगर हमारे पास इवेंट ई है इस तरीके से, अगर हमारा इवेंट ई डिराइव्ड हो तो दिस इज नोन एज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. वी हैव डिराइव्ड द रिजल्ट फॉर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. सो अर्लियर वी हैव डिराइव्ड द रिजल्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फ्रॉम कंडीशनल थ्योरम. उसके बाद हमने देखा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कैसे डिराइव करते हैं, ये हमारा रिजल्ट होगा. अब अगर इसको हमें समझना है कि इसका क्या मतलब है, तो लेट्स से हमारे पास 5 बैग्स हैं, बैग B1 B2 B3 B4 एंड B5, राइट. और हर बैग के अंदर लेट्स से किसी बैग में 2 रेड बॉल्स 3 ब्लैक ब्लू बॉल्स, बैग 2 में 1 ब्लू 3 रेड. लाइकवाइज m नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड n नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आर देयर वेयर m एंड n आर डिफरेंट. तो 5 बैग में रेड और ब्लू बॉल्स के कॉम्बिनेशन में बॉल्स रखे हुए हैं, राइट. नाउ वी नीड टू फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल्स. 5 बैग हैं, 1 2 3 4 5, लेट्स से 5 बैग हैं और हर बैग में अलग अलग कॉम्बिनेशन में रेड और ब्लू बॉल्स रखे हुए हैं. एंड वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स फ्रॉम ऑल द 5 बैग्स. तो जब हम रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे दैट विल बी नोन एज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. वी विल सी हाउ टू फाइंड दोज रिजल्ट आल्सो इन लेटर सेक्शंस. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेस थ्योरम. तो अभी हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम डिराइव कर लिया है, इस पर हम क्वेश्चन अभी आगे करेंगे. तो बेस थ्योरम में क्या होता है, बेस थ्योरम इज जस्ट लिंक्ड विद टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. अब लेट्स से हमारे पास यही सेम डायग्राम है, इवेंट सैंपल स्पेस ऐसे एंड पार्टीशन में डिवाइड कर दिया. इवेंट ई को हमने इस तरह से डिराइव कर दिया कि इवेंट ई हमारा ये है. एंड नाउ वी नीड टू फाइंड, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग टोटल प्रोबेबिलिटी वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड कि इवेंट E3 के थ्रू इवेंट ई के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. अभी जो हमने एग्जांपल लिया था 5 बैग्स हैं, तो अगर हमने बोला कि टोटल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, रेड बॉल्स की होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बाय मींस ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. अब लेट्स से वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड कि रेड बॉल्स आए बट इट शुड बी फ्रॉम बैग 3 इटसेल्फ. सिर्फ बैग 3 से आए वो बॉल, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल आने की. सो इन दैट केस, तो लेट मी राइट दैट रिजल्ट फॉर बेस थ्योरम. पोस्ट दैट वी कैन मूव टुवर्ड्स क्वेश्चंस पार्ट. तो बेस थ्योरम की अगर हम बात करेंगे तो लेट्स सी, अगर हमें बोला जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 सच दैट इवेंट E हैज ऑलरेडी अकर्ड. अगर यहाँ से हमें बोला जाए कि इवेंट E3 से या फिर बैग 3 से रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. सो लेट्स सी,
तो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो हम लिख सकते हैं इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम ये लिख सकते हैं। अब E3 इंटरसेक्शन E को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बोथ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो यहाँ से हम क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 के होने के बाद E के होने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना हो जाएगा, ऑल दिस टर्म्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI into probability of E such that EI has already occurred where I ranging from 1 to n। अगर हम इसको n पार्टिशंस में डिवाइड करते हैं, तो अगर हमें निकालना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 such that E has already occurred, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E such that E3 has already occurred अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E की आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये सारा रिजल्ट। तो अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ EI such that EI has already occurred, तो we can rewrite it as probability of EI into EI के होने के बाद E के होने की probability divided by यहाँ पे आएगा probability of E, that is total probability theorem। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, summation of I equals to 1 से लेके n तक probability of EI into probability of E such that EI has already occurred। तो ये हमारा बेस थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ऑल्सो वी हैव डिराइव्ड बाय द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एज वेल एज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगा। तो जो बेस थ्योरम है हमारा बेसिकली वो डिपेंडेंट है कंप्लीटली टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे। तो अगर हम बात करेंगे बेस थ्योरम में, इसमें क्या हुआ है, ये दिस इज फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। तो फेवरेबल में क्या है कि हमारे पास सिर्फ बैग 3 से कितने रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो हम ऊपर लिख लेंगे न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आएगा कि टोटल रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इफ देयर आर 5 बैग्स, तो पांचों बैग से रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट विल बी आवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। और हमारा फेवरेबल क्या हो जाएगा, तो जो क्वेश्चन में मेंशन होगा, लेट्स से मेंशन है कि बैग 3 से क्या रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो दिस विल बी वेरी मच क्लियर वंस वी विल गो थ्रू द क्वेश्चंस पार्ट। सो दिस इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ बेस थ्योरम। दिस इज बेस थ्योरम। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना सीखेंगे, कैसे अप्लाई करना है, तो हम हमारे को और अच्छे से क्लियर होगा। These are the theoretical parts. So till now we have gone through the theory part of multiplication theorem, total probability theorem as well as base theorem. So now let's move towards questions part, जहाँ पे हम क्वेश्चन से समझेंगे कि इन फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे और उनका क्या यूज केसेस हैं। So let's move towards questions. Let's take our first question based on total probability theorem as well as base theorem, and we will understand कि हम कैसे अप्लाई करेंगे उन फॉर्मूलाज को। So our question is, suppose we have 3 bags. Bag A contains 3 red and 6 blue balls. Bag B contains 2 red and 3 blue balls. Bag C contains 1 red and 4 blue balls. Now a dice is rolled, and if outcome is 1 or 5, a ball is drawn from bag A. If outcome is 2, 3 or 4, अगर 1 और 5 आता है तो बैग A से सेलेक्ट होगा, और 2, 3 और 4 आएगा तो बैग B से सेलेक्ट होगा, अदरवाइज इट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम बैग C. Now find the probability that drawn ball is red. तो लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास 3 बैग दिए हुए हैं विद द नंबर ऑफ बॉल्स एज 3 रेड एंड 6 ब्लू बॉल्स। दिस इज द बैग ए में इतने बॉल्स रखे हुए हैं। बैग बी में कितना हो जाएगा, 2 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बैग बी। In bag C, we have 1 red ball as well as 4 blue balls. These are the combination of bag C. तो bag A में इतने 3 red 6 blue likewise combination दिया हुआ हमारे पास। Now a ball is drawn from bag A। अच्छा, अगर हम एक डाइस थ्रो करेंगे, अगर डाइस पे 1 और 5 आता है तो बॉल जो होगा वो बैग ए से सिलेक्ट होगा। इट मीन्स कि अगर लेट से हम इवेंट डिसाइड कर लें, यहाँ पे इवेंट ई क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज रेड। तो रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो हमारा इवेंट ई क्या हो जाएगा, ड्रॉन बॉल इज रेड, ड्रॉन बॉल इज रेड। और हमें क्या है, 3 बैग है हमारे पास, अलग अलग 3 पार्टीशन, दैट इज E1, E2 एंड E3। तो पार्टीशन E1 क्या है हमारा,
बैग ए इज सिलेक्टेड, बैग ए इज सिलेक्टेड। हमारे पास 3 बैग्स हैं टोटल, तो बैग ए के सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमने इवेंट क्या डिसाइड किया, E1। लाइकवाइज हमारा E2 क्या हो जाएगा, बैग बी इज सिलेक्टेड, एंड E3 क्या हो जाएगा, बैग सी इज सिलेक्टेड। तो हमने 3 इवेंट डिसाइड कर लिए कि बैग ए सिलेक्ट हो गया, बैग बी या फिर बैग सी, एज वेल एज हमारा इवेंट ई क्या है, ड्रॉन बॉल इज रेड। तो हमने देखा था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की डेरिवेशन में हमारे पास एक सैंपल स्पेस एस होगा, जिसके अंदर हमने इस केस में 3 इवेंट में डिवाइड कर लिए, इवेंट E1, इवेंट E2 एंड इवेंट E3। तो इवेंट E1 क्या है, बैग ए सिलेक्टेड, इवेंट 2 क्या है, बैग बी सिलेक्टेड, इवेंट 3 क्या है, बैग सी इज सिलेक्टेड। अब तो हमारा ये इवेंट हो गया। अब हमारा इवेंट ई क्या है, ड्रॉन बॉल इज रेड। हमारा ये जो इवेंट ई है, ये इवेंट ई, दिस इज नोन एज ड्रॉन बॉल इज रेड। मतलब कि हमारे पास 3 अलग अलग बैग हैं, उसमें अलग अलग रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं तीनों बैग में। हमारा इवेंट ई क्या है कि तीनों हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स, तो वो हमें फाइंड करना है। तो अगर हमें रेड बॉल की निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो हमारे पास दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए सिलेक्टेड क्या प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल्स टू, या फिर फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं क्या करता हूँ, सारे टर्म्स को लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग ए, ये कितना हो जाएगा, 1 और 5 आएगा तो बैग ए से सिलेक्ट होगा, मतलब 2/6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी गेटिंग सिलेक्टेड इज, बैग बी के लिए 2, 3 और 4 है, दैट इज 3/6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैग सी सिलेक्टेड इज 1/6। 2 + 3 + 5 + 1 6। तो यहाँ पर हमारे पास बैग ए बी और सी के सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमने इंडिविजुअली लिख लिया है। अब लेट से हमारे पास एक इवेंट है और हमारे पास कोई भी बॉल ड्रॉ करना है, तो या तो हम बैग ए से सिलेक्ट करेंगे, या फिर हम बैग बी सिलेक्ट करेंगे, या फिर हम बैग सी सिलेक्ट करेंगे। वंस आवर बैग इज सिलेक्टेड, वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैग। अब लेट से हमारे पास बैग ए सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ से हम रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, फाइंडिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग ए। बैग ए से कितने रेड बॉल आ सकते हैं, 3/9। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग बी, बैग बी सिलेक्ट होने के बाद हमारे पास बैग बी से रेड बॉल, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ से, 2/5। सिमिलरली अगर हमारे पास बैग सी सिलेक्ट होता है, तो बैग सी से रेड बॉल की आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ से, 1/5। अब हमने क्या किया, बैग ए का प्रोबेबिलिटी मिल गया सिलेक्ट होने की। एक काम करते हैं, हमने देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कैसे लिखते हैं, लेट मी राइट वंस। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल्स टू, रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले हम डिसाइड करके कि बैग 1 सिलेक्ट हुआ है कि बैग 2 या बैग 3। तो लेट से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 निकालते हैं पहले, कि बैग ए से पहले हम बैग ए से निकालते हैं क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए। अब अगर हमारा बैग ए सिलेक्ट हो गया, तो वहां से फिर रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो निकालेंगे। मतलब बैग ए सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद बैग ए सिलेक्ट होने के बाद रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग बी into probability of getting red ball such that bag B has already been selected, plus probability of bag C into probability of getting red ball such that bag C has already been selected। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। नाउ वी नीड टू राइट द पर्टिकुलर वैल्यूज सो एज टू गेट द फाइनल आंसर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग ए। तो बैग ए की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास, 2/6। तो ये हो जाएगा 2/6 मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग ए। हमारे पास बैग ए आ चुका है, तो बैग ए से रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी, दैट इज 3/9। वी हैव ऑलरेडी रिटन हियर 3/9। तो ये हो जाएगा 3/9 प्लस, तो बैग बी का क्या प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट करने की, 3/6 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से बैग बी से सिलेक्ट होने के बाद यहाँ से रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/5 इंटू 2/5 प्लस, अब हम क्या करेंगे, बैग सी को सिलेक्ट कर लेंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1/6 मल्टीप्लाई बाई बैग सी सिलेक्ट होने के बाद यहाँ से रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1/5
अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल्स टू 3 to the 6 कैंसिल 1/9 प्लस 1/5 प्लस 1/30। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 30। 90 ले लेते हैं एलसीएम यहाँ से। अगर 90 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10 टाइम्स प्लस 18 प्लस 3। Now we can write probability of selecting red ball is equals to 10 plus 3 that is 21, 21 plus 18 that is 31। ये हो जाएगा, सॉरी 10 plus 3 13, 13 plus 18, 18 plus 13 that is 31/90। This is our final answer. Probability of getting red ball is 31/90। This is our first answer। कि रेड बॉल आने की क्या टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमने निकाल लिए 31/90। व्हाट वाज आवर अप्रोच, हमने देखा कि हमारे पास टोटल 3 बैग है, मतलब 3 पार्टीशन ड्रॉ किए गए हैं टोटल सैंपल स्पेस के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैग ए में इंटर करने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो मल्टीप्लाई बाई बैग ए से रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, प्लस बैग बी की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद बैग बी से रेड बॉल सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली वी विल ऐड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग सी, उसके बाद बैग सी सेलेक्ट होने के बाद बैग सी से रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो वी हैव एडेड ऑल दिस 3 टर्म्स so as to get our final answer that is 31/90। So our next question is if drawn ball is red, इसने बता दिया है कि ऑलरेडी जो हमने बॉल ड्रॉ किया है वो रेड है। अगर रेड है वो तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग सी। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन फ्रॉम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जो अभी हमने सॉल्व किया है ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से सवाल क्वेश्चन है। नाउ वी हैव बीन गिवन कि हमारे पास रेड बॉल आ चुका है, आउटकम बता दिया है ये। वी नीड टू फाइंड कि वो बैग सी से आया हो। दिस इज बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। तो एक ही क्वेश्चन में दोनों थ्योरम यूज हो रहा है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स, हमारे पास एक टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आ गई रेड बॉल की 31/90। इसको हम लिख लेते हैं रिजल्ट 31/90। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि सेकेंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अभी हमने जब बेस थ्योरम पढ़ रहे थे हम लोग बेस थ्योरम, तो हमने बताया था, मैंने बताया आपको कि लेट से हमारे पास अगर एक सैंपल स्पेस एस होगा, अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इवेंट E1, इवेंट E2 एंड इवेंट E3, और हमारे पास ये इवेंट E है दैट इज सिलेक्टिंग रेड बॉल। तो अब क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग सी। जो इवेंट E है, इवेंट E इज सिग्निफाइज एज रेड बॉल इज सिलेक्टेड। तो रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल 31/90, ये टोटल है। अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी है दैट इज 31/90। नाउ व्हाट क्वेश्चन इज आस्क्ड कि ये रेड बॉल तो आ चुका है, नाउ यू नीड टू फाइंड कि बैग सी से आया हो, मतलब आपको ये वाला क्वेश्चन बताना है, दिस वन, कि रेड बॉल तो आ चुका है, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम बैग सी दैट इज E3। तो हमें ये वाला पर्सन कैलकुलेट करना है फॉर पोर्शन नंबर सी। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इवेंट हमारे पास रेड बॉल आया हो और वो बैग 3 से सिलेक्ट हुआ हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमें क्या बताना है कि हमारे पास क्या है, रेड बॉल ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, रेड बॉल सिलेक्ट हो चुका है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग सी। यहाँ पे हम बताएंगे कि बैग सी से आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे, यहाँ से बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सी सच दैट रेड बॉल हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो रेड बॉल मिल गया है तो बैग 3 से आया है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सी मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल such that it is drawn from bag C divided by probability of getting red ball। तो probability of bag C में पता है, ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई probability of red ball such that bag C is already occurred। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने ये वाला इवेंट जो है डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट कर दिया। तो हमारे पास रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी जो कि बैग 3 से आया हो, ये है कि पहले हम बैग सी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद बैग सी को सिलेक्ट करने के बाद वहां से रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सी कितना हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाई रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है बैग सी से 1/5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, हम इंडिविजुअली बैग का रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी वो लिखेंगे, बट ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज 31/90। तो यहाँ हो जाएगा 31/90
सो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/30 मल्टीप्लाई बाई 90/31, दिस कैन बी कंक्लूडेड एज 3/31. दिस इज 3/31 आवर आंसर. सो प्रोबेबिलिटी की रेड बॉल आया हो और वो बैक सी से आया हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 3/31. सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि बेस थ्योरम क्या होता है कि हमारे पास 3 बैग हैं, राइट? 3 बैग हैं. वी हैव 3 बैग्स. अगेन वी विल ड्रॉ दैट सेम पिक्चर. ये बैग, ये हो जाएगा हमारा बैग ए, ये बैग बी और ये बैग सी. और ये इवेंट ये है कि रेड बॉल सिलेक्ट हो चुका है. तो नाउ इवेंट ई क्यू कैलकुलेट करने की जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. अब अगर हमारे पास रेड बॉल आया है और वो बैग सी से आया हो, उसको निकालना हो हमें, तो वी विल अप्लाई बेस थ्योरम. सो वी हैव सीन द कैलकुलेशन पार्ट आल्सो. सो आवर फाइनल आंसर इज 3/31 फॉर द सेकंड पोर्शन. So now let's move towards our next question. So our second question is, in a test, an examinee either guesses, copies or knows the answer for a multiple choice question having 4 choices of which exactly one is correct. The probability that he makes a guess is 1/3 and the probability for copying is 1/6. The probability that his answer is correct given that he copied it is 1/8. The probability that he knew the answer given that his answer is correct is. So हमारे पास 3 इवेंट दिया हुआ है. इवेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? एन एग्जामिनी हैज गेस, उसने गेस किया होगा. इवेंट 2 क्या हो जाएगा? कॉपी किया होगा. एंड इवेंट 3 क्या हो जाएगा? ही विल बी नोइंग द आंसर, ही न्यू द आंसर. तो अगर लेट्स से एग्जामिनी है, अगर वो गेस करता है या फिर कॉपी करता है या फिर ही न्यू द आंसर. अगर वो गेस करेगा, if he guesses the answer, probability क्या है गेस करने की? The probability that he makes a guess is 1/3. तो गेस करने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 1/3. सेकेंड क्या है? कॉपी करने का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? एंड द प्रोबेबिलिटी फॉर कॉपिंग इज 1/6. अगर ये 1/6 है तो फिर प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर इज दिस, ऑल 3 शुड बी इक्वल टू 1. तो यहाँ से हो जाएगा 1 - 1/3 + 1/6. सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 + 1 3, 3/6. तो हो जाएगा 3/6. तो इसको भी लिख सकते हैं 2/6. तो हमारे पास कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो गेस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/6, ही कॉपीज 1/6, ही न्यू द आंसर इज 3/6. नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, और क्या दिया हुआ प्रॉब्लम में? द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट. एक बार और देखते हैं. द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट, और इवेंट ही डिसाइड कर लेते हैं हम लोग. इवेंट ही क्या हो जाएगा? आंसर इज करेक्ट. आंसर इज करेक्ट. तो हमने क्या किया? 3 इवेंट डिसाइड कर लिया कि गेस करेगा या फिर कॉपी करेगा या फिर ही विल बी नोइंग द आंसर, एंड इवेंट इज आंसर इज करेक्ट. तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड. अगर यहाँ से करेक्ट ऑप्शन की बात करें, करेक्ट आंसर की बात करें अगर, तो कितना है प्रोबेबिलिटी? 1/8. सिमिलरली यहाँ से अगर वो गेस किया होगा, तो गेस करने की अगर 4 ऑप्शन है हमारे पास, राइट? किसी भी एमसीक्यू में अगर 4 ऑप्शन है तो उसको सही होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? दैट इज 1/4. तो यहाँ से सही होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 1/4. तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करेंगे अगर हम लोग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2/6 मल्टीप्लाई बाई 1/4. सिमिलरली यहाँ पे कितना है करेक्ट आंसर का प्रोबेबिलिटी? The probability that his answer is correct given that he copied is 1/8. तो अगर यहाँ हमें टोटल प्रोबेबिलिटी लिखना हो तो 1/6 इंटू 1/8, यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर उसको आंसर पता है, अगर आंसर पता है तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? दैट इज 1, दैट इज सर्टेन इवेंट. तो यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा. तो टोटल कितना हो जाएगा? 3/6 मल्टीप्लाई बाई 1, दैट इज 3/6. जो हमने किया अभी 2/6 मल्टीप्लाई बाई 1/4, मतलब कि हमारा गेस हुआ होगा, उसके बाद आंसर सही हुआ होगा. दैट इज, अगर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर. प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू, कि पहले हम क्या करेंगे? गेस करेंगे. गेस करने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 2/6, दैट इज 2/6 मल्टीप्लाई बाई, गेस करने के बाद सही होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/4. तो गेस करने के बाद सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस सेकेंड हम क्या करेंगे? कॉपी करेंगे हम लोग. अगर हम कॉपी करते हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6. कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है. अगर कॉपी किए तो कॉपी करने के बाद सही होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? दैट इज 1/8. इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन. कॉपी करने के बाद सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/8 प्लस
थर्ड हमारा क्या है कि हमें आंसर पता हो, अगर हम उस वाले अटेम्प्ट पे जाएंगे, इफ यू, अगर हमें आंसर पता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी 3/6, अगर हमें आंसर पता है तो सही होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 1। तो हम तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा 1/3 1/12 प्लस यहाँ से हो जाएगा 1/48 प्लस यहाँ से आ जाएगा 1/2। तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम 48, यहाँ से आएगा 4 + 1 + 24 दैट इज 29/48। ये क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 29/48 क्या हो गया हमारा, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर गिवन दैट हिज आंसर इज करेक्ट। बेसिकली हमें क्या पूछा है वो, कि थर्ड वाला इवेंट का पूछा है वो, ये वाला पार्टीशन, इसका प्रोबेबिलिटी बताना है हमें कि वो सही आंसर, गिवन दैट हिज आंसर इज करेक्ट, वो हमारा थर्ड ऑप्शन से सही हुआ हो, मतलब हमें आंसर पता हो उसके बाद हमारा आंसर सही हुआ हो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फेवरेबल क्या हो जाएगा इस केस में, 3/6 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 29/48। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ he knew the answer मतलब E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 सच दैट आंसर इज करेक्ट, हमसे यही पूछा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3/6 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E सच दैट E3 हैज ऑलरेडी अकर्ड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन EI वेयर I रेंजेस फ्रॉम 1 to 3, क्योंकि हमारे पास 3 इवेंट है, राइट। तो अगर हमारा जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, अगर हम इसमें वैल्यू फिट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर हम वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 सच दैट E हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल्स टू, E3 कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हमें आंसर पता है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/6। तो आंसर पता है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 अगर हमें आंसर पता है उसके बाद सही होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा सही होने की, दैट इज 29/48, इट इज 29/48। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, 1/2 इंटू 48/29 दैट इज 24/29 इज द राइट आंसर, 29/24 सॉरी 24/29, ऑप्शन सी इज राइट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमारे पास टोटल 3 इवेंट दिया हुआ है कि या तो वो गेस करेगा या तो कॉपी करेगा या तो उसको आंसर पता होगा जो भी एग्जामिनी है, राइट। तो वहां से हमें पता है कि गेस करने की प्रोबेबिलिटी 2/6, उसको आंसर कॉपी करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, उसको आंसर पता है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 है। तो तीनों इवेंट को हम मर्ज करके निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर। तो वहां से क्या होगा हमारे पास, करेक्ट आंसर का क्या प्रोबेबिलिटी लिखेंगे हम लोग, पहले तो हम मान लेंगे कि वो गेस करेगा, तो गेस करेगा तो 2/6 मल्टीप्लाई बाई गेस करने के बाद सही होने की क्या प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1/4। अगर वो कॉपी करेगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6। कॉपी करने के सही होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 1/8 प्लस अगर उसको आंसर पता है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/6, अगर उसको आंसर पता है उसके बाद सही होने की क्या प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1। तो आफ्टर एडिशन ऑफ दिस वी विल बी गेटिंग 29/48। तो ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर। अब हमें बताना है कि करेक्ट आंसर तो आया है सच दैट उसको आंसर पता हो, तो आंसर पता हो उसका क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 3/6 डिवाइडेड बाई 29/48। आफ्टर सॉल्विंग वी गॉट 24/29 एज अ फाइनल आंसर। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज, bag A contains 2 white, 1 black and 3 red balls, and bag B contains 3 black, 2 red and n white balls. One bag is chosen at random and 2 balls drawn from it at random are found to be 1 red and 1 black. If the probability that both balls come from bag A is 6/11, then n is equal to. So from the given question, जो भी हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको पहले हम लोग लिखते हैं एक बार। So, हमारे पास क्या दिया हुआ है, bag A contains 2 white, 1 black and 3 red balls. This is the number of balls in bag A. और bag B में कितना है, bag B contains 3 black, 2 red and n white balls. These are the combination of bag B. इसका पूछा है हमें, 1 bag is chosen at random, कोई भी एक बैग को हम चूज करते हैं, उसके बाद 2 बॉल्स निकालते हैं। जब दोनों बॉल्स निकालते हैं तो एक रेड आता है और एक ब्लैक आता है। तो हमारे पास 2 इवेंट हो जाएंगे। इवेंट क्या हो जाएगा कि बैग ए इज सिलेक्टेड, सिमिलरली इवेंट 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, बैग बी इज सिलेक्टेड,
और हमारे पास इवेंट ई क्या हो जाएगा, इवेंट ई हो जाएगा वन रेड एंड वन ब्लैक बॉल इज सिलेक्टेड, वन रेड एंड वन ब्लैक बॉल इज सिलेक्टेड। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स कम फ्रॉम बैग ए इज 6/11 देन एन इज इक्वल टू। अच्छा, हमारे पास ये नहीं दिया हुआ कि बैग ए और बैग बी को सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी, इट मींस कि दैट बोथ आर लाइकली इवेंट्स। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई2 इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब हम बैग ए को भी 1/2 सिलेक्ट कर सकते हैं एंड बैग बी को भी हम 1/2 से सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अगर हम बैग ए को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद हमें बोला है कि इफ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स कम फ्रॉम बैग ए, अगर हम बैग ए को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद हमारे पास ये कंडीशन हो जाए कि एक रेड बॉल है और एक ब्लैक बॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी में दिया हुआ है 6/11 देन एन इज इक्वल्स टू। हम क्या करेंगे यहाँ से, वी हैव टू चॉइसेस, या तो हम बैग ए को सिलेक्ट करेंगे या फिर हम लोग बैग बी को सिलेक्ट करेंगे, राइट। अब अगर हम बैग ए को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, बोथ बॉल्स कम फ्रॉम बैग ए। यहां से हम लिख सकते हैं, तो एक रेड और एक ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ से, तो बैग ए को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। यहाँ से भी आ जाएगा बैग बी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब अगर हम बैग ए को सिलेक्ट कर लें तो हमारे पास एक रेड और एक ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ से, एक रेड और एक ब्लैक बॉल। तो हमारे पास रेड कितने हैं, 3 बॉल हैं, तो 3 में से हमें एक सिलेक्ट करना है, और ब्लैक कितने, हमारे पास एक ही ब्लैक है, उसमें से हमें एक चूज करना है, दैट इज 1C1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 6, तो हो जाएगा 6C2। अब यहाँ से हमारे पास ये कॉम्बिनेशन क्या हुआ, इवेंट ई होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इवेंट ई क्या है कि एक रेड और एक ब्लैक बॉल आए। तो अगर हम बैग बी को सिलेक्ट करेंगे तो वहां से एक रेड और एक ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ से, तो हमारे पास सॉरी रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ से 2C1 मल्टीप्लाई बाई, और एक ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3C1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर n+5, तो यहाँ हो जाएगा n+5C2। तो ये हो गया हमारे पास 1/2 से सेलेक्ट करेंगे बैग 1 को। उसके बाद बैग 1 सेलेक्ट होने के बाद एक रेड और एक ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हो जाएगा हमारे पास। सिमिलरली बैग बी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। वंस एक बार हमने बैग बी को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमारे पास एक रेड और एक ब्लैक बॉल को सेट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो ये हो जाएगी। तो हमारे पास क्या करेंगे हम लोग, हमें क्या दिया हुआ है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर कम फ्रॉम बैग ए, इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्स फ्रॉम बैग ए इज 6/11। एक सेकेंड, बैग इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है 6/11, मतलब कि हमारे पास एक रेड और एक बॉल सिलेक्ट हो और वो बैग 2 से आ रहा हो, फ्रॉम बैग ए, सॉरी अगर ये बैग ए से आ रहा होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी में दिया हुआ है 6/11। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे 6/11 से टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार हम लोग, हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अलग से निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई दिस, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3C1 मतलब 3/6C2 मतलब 6 × 5/2, ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/10। एक सेकेंड, प्लस ये तो हमारा हो गया पहला वाला बैग ए से। बैग 2 से अगर हम जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इवेंट ई का होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई बाई बैग बी सिलेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बैग बी सिलेक्ट होने के बाद जो हमारा इवेंट ई है उसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म दैट इज 2C1 × 3C1 दैट इज 6, 2 × 3 डिवाइडेड बाई n+5C2, तो यहाँ से हो जाएगा n+5 × n+4 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/10 प्लस, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 × 2 = 6/n+4 × n+5। तो ये हो गया हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी इवेंट ई के होने की। अब हमें क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेट कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दिया हुआ है
यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सच दैट E हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अगर हमने बैग ए को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद हमारा इवेंट ई के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज दिस वन। तो ये हो जाएगा 3C1 इंटू 3C1 इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज दिस वन। ये हो जाएगा हमारे पास 1/10 प्लस 6/n+4 इंटू n+5 एंड दिस इज गिवन एज 6/11। तो क्या करेंगे, यहाँ से n की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 3/3 2 जा 6, तो न्यूमरेटर में आ गया हमारे पास 1/10 डिवाइडेड बाई 1/10, या फिर हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा 10 इंटू n+4 इंटू n+5, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा n+4 इंटू n+5 प्लस 6 इंटू 10 दैट इज 60। तो दिस कैन बी इक्वेटेड एज 1/10 इंटू n+4 इंटू n+5 divided by this term that is n+4 into n+5 plus 60 is equals to 6/11। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 11 इंटू n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20 is equals to 6 इंटू n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20 प्लस 60। तो यहाँ से हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट इट एज 11n स्क्वायर, यहाँ से आएगा 6n स्क्वायर, तो इन टोटल बचेगा 5n स्क्वायर, यहाँ से आएगा 99n माइनस 9 6 54n, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, यहाँ से 9 माइनस 5 4, तो प्लस 45n प्लस कॉन्स्टेंट टर्म देख लेते कितना आएगा, यहाँ से आएगा 220 माइनस यहाँ से आएगा 60 प्लस 20 80 इंटू 6 माइनस 480, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 0 माइनस 0 दैट इज 0, 8 माइनस 2 दैट इज 6, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2 इज इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 5 2 इक्वल्स टू 0। From here we can write the value of n using Siddharacharya formula we can find the value of n. So here n equals to minus 9 plus minus root over b square minus 4ac, 4 2 is 8, 5 2 is 5 4 is 20. From here we can write upon 2 n is equals to minus 9 plus minus 289 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस 17/2, यहाँ से दो आंसर आ जाएंगे, -9 है पहले, तो -9 माइनस 17 दैट इज -26/2, या फिर 17 माइनस 9 दैट विल बी इक्वल्स टू 8/2, दिस विल बी -13 एंड दिस विल बी +4, -13 विल बी डिस्कार्टेड बिकॉज n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी, और फाइनल आंसर इज 4। हमने क्या किया यहाँ पे, हमारे पास दो कॉम्बिनेशन दिए हुए थे बैग ए और बैग बी, जिसके अंदर रेड ब्लू और ब्लैक बॉल्स के कुछ कॉम्बिनेशन दिए हुए थे। वहां से हमें दिया हुआ था कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स कम फ्रॉम बैग ए, अगर बैग ए से दोनों बॉल आते हैं, जो इवेंट ई था हमारे पास कि एक रेड आएगा और एक ब्लू एक ब्लैक बॉल आएगा, तो हमने सारे कॉम्बिनेशन लिख लिए थे। तो वहां से जो हमारे पास इक्वेशन बना उसको सॉल्व करने से हमारे को एन की वैल्यू कितनी आ गई 4। So this was also a good question from Bayes theorem, which has already been asked in JEE Mains 2022. So our next question is, from a pack of 52 cards, one card is lost. From the remaining cards, 2 cards are drawn simultaneously and are found to be both diamonds. What is the probability that the lost card was a diamond? हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, एक 52 कार्ड्स होते हैं, जिसके कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होते हैं। 52 कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज 26 रेड एंड 26 ब्लैक। इसमें से भी ब्लैक में क्या क्या होता है हमारे पास, स्पेड 13 होते हैं और क्लब कितने होते हैं 13। सिमिलरली रेड में क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, डायमंड 13 होते हैं
और हर्ट 13 होते हैं। नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन, हमारे को दिया है कि एक कार्ड लॉस्ट हो गया है, तो हमारे पास क्या क्या इवेंट बन सकते हैं। जो कार्ड लॉस्ट हुआ है वो डायमंड हो, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। इवेंट E2 क्या हो जाएगा फिर, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। तो हमारे पास पहला का क्या, या तो हमारे पास जो कार्ड लॉस्ट हुआ है या तो वो डायमंड रहा होगा या फिर डायमंड नहीं रहा होगा। और हमारे पास पूछा क्या है, इवेंट E क्या दिया हुआ है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड। तो हमने ये इवेंट्स लिख लिए इस तरीके से। अब हमारे पास लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन लिखना हो तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज इक्वल्स टू, टोटल कितने डायमंड हमारे पास 13, तो टोटल कार्ड्स कितने होंगे हमारे पास 52, तो 13/52 दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, 1 - 1/4 दैट इज 3/4। या तो हमारा कार्ड जो लॉस्ट है वो डायमंड होगा तो 1/4 आएगा प्रोबेबिलिटी, अगर वो डायमंड नहीं होगा तो उस केस में कितना हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 3/4। नाउ हमें बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड वाज अ डायमंड, लॉस्ट कार्ड वाज अ डायमंड। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड, दिस वी नीड टू फाइंड, राइट। हम ऐसे करेंगे इसको, तो अप्लाइंग बेस थ्योरम, तो हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E इज इक्वल्स टू probability of E1 into probability of E such that E1 has already occurred divided by probability of E। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, probability of E1 कितना हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई probability of E1 such that E1 has already occurred। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर हमारे पास जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड होगा, अगर लेट्स से 52 कार्ड से उसमें से डायमंड एक लॉस्ट हो गया, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बचेंगे हमारे पास, 51 टोटल कार्ड्स बचेंगे जिसमें से 12 डायमंड होंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 12 डायमंड होंगे, इसमें से हमें क्या करना है, बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड सिलेक्ट करना है, मतलब 12 डायमंड में से हमें 2 डायमंड सिलेक्ट करने हैं। तो 12C2 डिवाइडेड बाय कितने टोटल कार्ड्स होंगे उस टाइम पे 51, क्योंकि एक कार्ड लॉस्ट हो चुका है, तो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E मतलब बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड। तो पहला केस क्या होगा कि लॉस्ट कार्ड इज डायमंड दैट इज दिस वन, तो 12C2/51C2 प्लस दूसरा केस क्या होगा कि जब डायमंड लॉस्ट नहीं हुआ होगा, कुछ और लॉस्ट हुआ होगा अदर देन डायमंड, 3/4 इंटू, अगर डायमंड लॉस्ट नहीं हुआ होगा उस केस में डायमंड कितने बचेंगे हमारे पास, 13 के 13 पूरा डायमंड बच जाएगा हमारे पास, तो वहां से आ जाएगा 13C2 डिवाइडेड बाई 51C2। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू, तो 51C2 तो उड़ जाएगा हर तरफ से, तो हमारे पास बचेगा 1/4 इंटू 12C2 दैट इज 12 इंटू 11/2 डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू 12 इंटू 11/2 प्लस 3/4 इंटू, यहाँ से बचेगा 13C2 दैट इज 13 इंटू 12/2। सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से, हमारे पास आ जाएगा 1/8 हट जाएगा हर तरफ से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सच दैट E हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल्स टू 12 इंटू 11 अपॉन, यहाँ से आएगा 12 इंटू 11 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 1/8 उड़ जाएगा, तो बचेगा 3 इंटू 13 इंटू 12, यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सच दैट E हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल्स टू, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 231 डिवाइडेड बाई 132 प्लस 13 3 39, 39 इंटू 12, 39 इंटू 12, 12 9 108, 12 3 36 प्लस 10 दैट इज 468। यहाँ से जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सच दैट E हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल्स टू 132 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 दैट इज 10, 6 प्लस 3 9, 10 कैरी 1 इज 600। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E इज इक्वल्स टू 4 से डिवाइड लगाएंगे तो हो जाएगा 4 3 12, again 4 3 12 upon this much, and again it will be after dividing with 3 11/15. So probability of E1 upon E is equals to 11/50 is the right answer. So what we have done, हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें से 26 रेड 26 ब्लैक, तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन होते हैं स्पेड क्लब डायमंड हट के।
इसमें से 13 डायमंड होता है हमारे पास। तो हमारे पास एक कार्ड लॉस्ट हुआ है, या तो वो डायमंड में से लॉस्ट हुआ होगा या फिर डायमंड में से लॉस्ट नहीं हुआ होगा। तो अगर डायमंड लॉस्ट हुआ होगा हमारा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड लॉस्ट इज 1/4। अगर डायमंड लॉस्ट नहीं हुआ, कुछ और लॉस्ट होता है, उसके इसमें क्या आगे प्रोबेबिलिटी हमारी 3/4। अब अगर हमें बताना है कि नाउ आवर इवेंट इज बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड, एक कार्ड लॉस्ट होने के बाद हमने 2 कार्ड ड्रॉ किए एंड बोथ आर डायमंड। तो लेट्स से अगर वो डायमंड लॉस्ट होता है हमारा, तो उस केस में हमारे पास डायमंड कितना बचेंगे, 12। तो 12 डायमंड बचेंगे, तो 12c2/51c2, क्योंकि एक कार्ड लॉस्ट हो चुका है, टोटल कार्ड इज 51 रिमेनिंग। सो लेट्स से हमारा क्या हुआ, जब लॉस्ट हुआ वो कार्ड तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू डायमंड लॉस्ट हुआ होगा वो प्रोबेबिलिटी, प्लस डायमंड लॉस्ट नहीं हुआ है तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई। अब हमारे पास अगर डायमंड लॉस्ट नहीं हुआ है, मतलब टोटल डायमंड कितने बचे, 13। तो 13c2 अपॉन टोटल कार्ड कितने बचे हैं, 51, दैट इज 51c2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 11/15। दैट्स इट। तो दिस इज द मेन कि हम इसको कैसे लिखें। तो एक बार बता देता हूँ मैं वापस से, अगर डायमंड लॉस्ट हुआ होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई डायमंड की, 1/4। और अगर डायमंड लॉस्ट हो चुका है तो हमारे पास डायमंड कितने बचे हैं अभी, 12। तो 12c2, क्योंकि 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं डायमंड, एक इवेंट को लॉस्ट, एक कार्ड को लॉस्ट करने के बाद। तो अगर हमारे पास दोनों कार्ड डायमंड आते हैं तो 12 में से 12c2 अपॉन टोटल कार्ड रिमेनिंग 51। सिमिलरली यहाँ पे ये टर्म लिख लेंगे, प्लस अगर डायमंड लॉस्ट नहीं हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 3/4, और टोटल डायमंड कितने बचेंगे उस केस में 13। तो 13c2 अपॉन 51c2, इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारा फाइनल आंसर आ गया 11/15। So this is our final answer for this question. So let's see our next question. The question is, a person goes to office either by car, scooter, bus or train, the probability of which being 1/7, 3/7, 2/7 and 1/7 respectively. Probability that he reaches office late if he takes car, scooter, bus or train is 2/9, 1/9, 4/9 and 1/9 respectively. Given that he reached office in time, then what is the probability that he traveled by a car is? So हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है उसको एक बार हम नोट डाउन करते हैं। So as to proceed in our question, we have been given a person goes to office either by car. तो हमारे पास 4 इवेंट बन रहे हैं पहले तो, whether he chooses car, या फिर इवेंट 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, स्कूटर। इवेंट 3 will be, you can write car is selected, scooter is selected, likewise bus is selected, and event 4 is ट्रेन इज सिलेक्टेड। हमारे पास 4 इवेंट बन गए। इवेंट क्या है, कार से गया होगा या फिर स्कूटर से ऑफिस गया होगा या फिर बस से ऑफिस गया होगा या फिर ट्रेन से ऑफिस गया होगा, राइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विच बीइंग इज 1/7। तो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 1/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज 2/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इज 1/7। इसका क्या मतलब हुआ कि एक देयर इज अ वन पर्सन हु कैन गो टू हिज ऑफिस बाय मीन्स ऑफ कार या फिर स्कूटर या फिर बस या फिर ट्रेन। हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस हैं ऑफिस जाने के लिए, राइट। तो कार से, अगर लेट से कार से ऑफिस गया होगा, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रेवल्ड बाय अ कार। तो कार से ऑफिस जाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, एंड गिवन दैट ही रीच ऑफिस इन टाइम। एक इवेंट ई ले लेते हैं, रीच्ड ऑफिस इन टाइम। अब अगर ये ऑफिस टाइम पे गया है, हमारा इवेंट ई है, तो अगर कार से जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 1/7। उसके बाद ऑफिस टाइम पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, रीच्ड ऑफिस इन टाइम। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास, लेट से अगर कार से जाता है तो 1/7 प्रोबेबिलिटी है, और अगर कार से जाता है तो उस ऑफिस पहुंचने क्या टाइम क्या प्रोबेबिलिटी है कि सही टाइम पहुंच जाएगा। तो लेट जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेस ऑफिस लेट इफ ही टेक्स कार, स्कूटर, बस और ट्रेन। अगर वो कार से जाता है तो 2/9 प्रोबेबिलिटी है कि वो लेट पहुंचता है। तो अगर कार से जाएगा तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो सही टाइम पहुंच जाएगा, दैट इज 1 - 2/9, दैट इज 7/9। यहाँ हो जाएगा 7/9। सिमिलरली अगर वो स्कूटर से जाएगा तो ऐसी क्या कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो सही टाइम में पहुंचेगा ऑफिस। तो अगर स्कूटर जाता है तो लेट पहुंचने की टाइमिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/9। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो सही टाइम पहुंचेगा, दैट इज 1 - 1/9, दैट इज 8/9। सिमिलरली बस से जाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी सही टाइम में पहुंचेगा, दैट इज 5/9। और यहाँ पे ट्रेन से जाने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 8/9।
तो ये क्या प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास कि अगर वो कार से जाएगा ऑफिस और वो सही टाइम पहुंचेगा ऑफिस, दैट इज 7/9. नाउ व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रेवल्ड बाय अ कार, वो कार से गया हो और सही टाइम पे पहुंच गया हो. इसका क्या मतलब हो जाएगा कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी वो कार से गया हो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सच दैट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड. अब वो सही टाइम पे पहुंचा हो, राइट. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, दैट इज 1/7 मल्टीप्लाई बाई, अगर वो कार से जाएगा तो सही टाइम पे पहुंचने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 7/9. ये हो जाएगा 7/9 डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ई, दैट इज की सही टाइम पे पहुंचे वो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/7 इंटू 7/9. तो हो गया कार से पहुंचने की सही टाइमिंग. अब स्कूटर से पहुंचने की क्या सही टाइमिंग हो गई, स्कूटर से पहुंचने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सॉरी स्कूटर से जाने की प्रोबेबिलिटी है 3/7 मल्टीप्लाई बाई, अब अगर वो स्कूटर जाता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी को सही टाइम में पहुंच जाए, दैट इज 8/9. यहाँ हो जाएगा 8/9 प्लस बस का कितना है प्रोबेबिलिटी, दैट इज 2/7, और अगर बस से जाएगा तो क्या प्रोबेबिलिटी के सही टाइम में पहुंचेगा, दैट इज 5/9 प्लस ट्रेन से जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/7, और अगर ट्रेन से जाएगा तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो सही टाइम पे ऑफिस पहुंचेगा, दैट इज 8/9. इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट वी विल बी गेटिंग, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/7 से 1/7 कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ बचेगा 1/9 डिवाइडेड बाई 1/9 प्लस यहाँ से 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 8/21 प्लस यहाँ से बचेगा हमारे पास 10/63 प्लस यहाँ से बचेगा 8/63. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग. यहाँ बचेगा हमारे पास 1/9 डिवाइडेड बाई 63 विल बी एलसीएम, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 7 प्लस 8 3 जा 24 प्लस 10 प्लस 8, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1/9 मल्टीप्लाई बाई 63/24 प्लस 7 दैट इज 31 प्लस 10 41 प्लस 8 49. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 1 जा 9 9 7 जा 63, दैट विल बी 7/49 and it will be 1/7. दिस इज द फाइनल आंसर. तो हमारे को क्या दिया हुआ था, टोटल 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल थे हमारे पास और हमें ऑफिस जाना था. चारों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की क्या प्रोबेबिलिटी है डिफरेंट दैट हैज बीन गिवन द क्वेश्चन, एंड वी हैव बीन आस्क्ड कि हम कार से जाएंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी कि हम सही टाइम पे ऑफिस पहुंच जाएंगे. तो हमें ये दिया हुआ था कि कार या फिर अलग अलग कार, स्कूटर, बस या फिर ट्रेन जाने की, अगर हम इससे जाते हैं तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी कि हम लेट पहुंचेंगे ऑफिस, वो हमें दिया हुआ था. तो अगर लेट पहुंचने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1. तो हमारे पास वो आ गया. तो हमने क्या किया कि कार से जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है सही टाइम पे, तो कार से जाने की प्रोबेबिलिटी 1/7 और कार से जाने की प्रोबेबिलिटी 1/7 और कार से सही टाइम पे ऑफिस पहुंचने की क्या प्रोबेबिलिटी है 7/9. सिमिलरली हमने कार, स्कूटर, बस और ट्रेन के लिए सारी प्रोबेबिलिटी लिख दी. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गॉट आवर फाइनल आंसर एज 1/7. So this was a good question which has been asked in JEE Advanced 2005. So you should revise all the questions again for previous year so that कि आपको और अच्छे से concept build हो पाए. So let's move towards next question. The question is, there are 3 bags B1, B2 and B3. The bag B1 contains 5 red and 5 green balls. B2 contains 3 red and 5 green balls and B3 contains 5 red and 3 green balls. Bags B1, B2 and B3 have probabilities 3/10, 3/10 and 4/10 respectively of being chosen. A bag is selected at random and a ball is chosen at random from the bag. Then which of the following options is or are correct? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें चारों के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग से, so as to answer this question. So let's attempt one by one. तो हमारे पास यह पहला प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बैग इज B3 एंड द चोजन बॉल इज ग्रीन इक्वल्स 3/10. सॉल्व करते हैं हम लोग पहले इसको. तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या दिया हुआ है, बैग B1 में कितने कितने आइटम्स हैं, तो B1 कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ग्रीन बॉल्स. यह होगा हमारे पास बैग B1 का कॉम्बिनेशन. बैग B1. B2 में क्या क्या है, 3 रेड एंड 5 ग्रीन बॉल्स. ये हो गया हमारे पास बैग B2. सिमिलरली बैग 3 में क्या क्या है, 5 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स. 5 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स. ये हो गया हमारे पास बैग B3. अब हमें इन बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी दिया हुआ है, तो लेट्स से हमारा इवेंट क्या हो जाएगा, बैग
B1 इज सिलेक्टेड, सिमिलरली E2 क्या हो जाएगा, बैग B3 इज सिलेक्टेड, सॉरी B2 इज सिलेक्टेड, और E3 हो जाएगा बैग B3 इज सिलेक्टेड। 3 बैग है टोटल। और इवेंट E क्या हो जाएगा हमारा, लेट्स से chosen ball is green, chosen ball is green। हमारे पास जो सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि या तो हम बैग B1 सिलेक्ट करें, या तो बैग B2, या फिर बैग B3। जो पहला क्वेश्चन है उसमें है प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बैग इज B3। तो अगर हमारे पास B3 सिलेक्ट हो जाए तो और उसके बाद चोजन बॉल इज ग्रीन, तो B3 सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर हम प्रोबेबिलिटी भी लिख लें अगर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यही लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना दिया हुआ है, 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, 3/10। लाइकवाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 4/10। तो पहले ऑप्शन की बात करेंगे हम लोग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग B3, उसके बाद हमारे पास क्या दिया है, चोजन बॉल इज ग्रीन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स सच दैट कि ये बैग B3 से सिलेक्ट हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 4/10 मल्टीप्लाई बाई ग्रीन बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/8, 3/8 दैट इज 3/20 is the answer for our first question, but the given answer is 3/10, so this is not correct answer, this is not the correct option because correct answer is 3/20। तो बी ऑप्शन सॉल्व करते हैं एक बार। प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बैग इज B3 गिवन दैट चोजन बॉल इज ग्रीन, चोजन बॉल इज ग्रीन दिया हुआ है, तो काम करते हैं हम लोग पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल निकाल लेते हैं। लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन बॉल इज ग्रीन, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, E कितना होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन आने क्या क्या चांसेस है कि हम बैग B1 को सिलेक्ट करें, वहाँ से ग्रीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्लस बैग B2 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से ग्रीन बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्लस बैग 3 को सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लाई बाई बैग 3 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ग्रीन बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक बार लिखते हैं हम लोग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कितना हो जाएगा, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स इज इक्वल्स टू कि बैग B1 को सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 3/10, ये हो जाएगा 3/10 मल्टीप्लाई बाई बैग B1 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ग्रीन बॉल लाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 5/10 मल्टीप्लाई बाई 5/10 प्लस बैग B2 को सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/10 मल्टीप्लाई बाई 5/8, तो यहाँ हो जाएगा 3/10 मल्टीप्लाई बाई 5/8 प्लस 4/10 मल्टीप्लाई बाई यहाँ से ग्रीन बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/8, यहाँ से हो जाएगा 3/8। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3/20 प्लस 5 1 जा 5 2 जा, तो यहाँ से जाएगा 3/16 प्लस यहाँ से 4 1 जा 4 2 जा, तो जाएगा 3/20 इज इक्वल्स टू 3 + 3 6/20 प्लस 3/16। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 320 विल बी द एलसीएम, या फिर 60 विल बी द एलसीएम, सॉरी 80 will be the LCM, so here will be 424 plus 5 is 5 3 is 15, that will be equals to 39/80। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल 39/80। तो हमारा लास्ट ऑप्शन भी सही होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कितना हो जाएगा, 39/80। दिस इज राइट ऑप्शन। तो हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कितना हो जाएगा, 39/80। हमने क्या किया, ग्रीन बॉल लाने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हम बैग B1 में जाएं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे बैग B1 सेलेक्ट करने के बाद ग्रीन बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो वहाँ से हमारे पास आ गया ये वाला टर्म। फिर हम बैग B2 को सिलेक्ट करेंगे, B2 सिलेक्ट करने के बाद वहाँ से ग्रीन बॉल लाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 5/8। बैग 3 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 4/10, और एक बार बैग 3 सिलेक्ट हो गया B3, उसके बाद वहाँ से ग्रीन बॉल लाने की क्या प्रोबेबिलिटी, दैट इज 3/8। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 39/80 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल 39/80। आगे सेकंड ऑप्शन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बैग इज B3। यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी को सिंप्लीफाई करते हैं एक बार। सिलेक्टेड बैग इज B3 दैट इज E3 गिवन दैट चोजन बॉल इज ग्रीन, चोजन बॉल इज ग्रीन। हमें ये कैलकुलेट करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल हमें पता ही है, यहाँ से यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कितना है, 39/80, मीन्स वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल सच दैट इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम बैग 3। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो जाएगा, 4/10 मल्टीप्लाई बाई ग्रीन बॉल आने क्या प्रोबेबिलिटी है बैग 3 से, दैट इज 3/8। ये हो जाएगा 3 बैग 3 से, ठीक है। तो हो जाएगा 3/8 डिवाइडेड बाई 39/80। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12/39। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/13, बट यहाँ पे दिया हुआ है 5/13, तो हमारा ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमने ये निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बैग इज B3 गिवन दैट ग्रीन बॉल इज सिलेक्टेड। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4/13, गिवन ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन इज प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट द सिलेक्टेड बैग इज B3। सिलेक्टेड बैग इज B3, अगर बैग B3 सिलेक्ट हो चुका है अगर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन बॉल इज ग्रीन, अगर बैग 3 को हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल दैट इज 3/8, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रीन बॉल है, टोटल कितना हो जाएगा बॉस, 3 + 8 दैट इज 8, 3/8 दैट इज राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा, राइट वाला, C और D इज राइट ऑप्शन। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, क्या हुआ, जो लास्ट ऑप्शन है इससे क्या हो रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं हम लोग इस पे। बाकी तीनों ऑप्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी में बेस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, किसी में नॉर्मल। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें दिया हुआ है कि बैग 3 सिलेक्ट हो चुका है, हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ ये बॉक्स बचता है। अब इस बॉक्स में से ग्रीन बॉल लाने क्या प्रोबेबिलिटी, दैट इज 3/8। सो लाइकवाइज वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द ऑप्शंस एंड वी हैव सीन। सो यू कैन रिवाइज दिस क्वेश्चन, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज इट हैज टेकन ऑल द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम बेस थ्योरम एज वेल एज फ्रॉम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। So this much for advanced question. I have taken this question from previous year. So now let's move towards some of the questions that need to be solved by yourself, and you need to apply by yourself so that कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ से सीखोगे। As well as जो भी हमने 6 क्वेश्चन लिए ऑलरेडी, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो अच्छे से तो then you will be able to solve as many questions that can be asked in JEE Mains as well as JEE Advanced। कि सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए। The part remaining is your practice part that you need to do by yourself. So let's take your questions. So these are the questions that you need to be practiced by yourself. Let's note down the questions. You can take the screenshot as well as you can rewrite the questions at your own. So question number 7, question number 8 and question number 9. So all the questions I have given the answers to you so that you can be able to match your answers after solving the questions. So अभी तक जितने भी questions हमने किए हैं आज से क्लास में solve किए हमने, just go through all the questions one by one and solve it without seeing the solutions, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं और कैसे इंप्लीमेंट करना है बेस थ्योरम एज वेल एज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, आपको उसकी अच्छी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। उसके बाद आप अगर इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे वापस से एक बार खुद से, एंड आफ्टर मैचिंग आंसर्स you will gain much confidence to be able to solve any questions of incoming examination of JEE Mains as well as in JEE Advanced. So make sure कि आप सारे प्रैक्टिस करते हो सारे क्वेश्चंस को, सारे थ्योरी पार्ट जितना था वो आप अच्छे से रिवाइज करते हो, एंड मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर।